सो बेटा सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। सो बेटा ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ L एंगल A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਰੇਖਾ L एंगल A ਨੂੰ समदुभाजित करती है ਅਤੇ B एंगल ਅਤੇ B L ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ B L ਉੱਤੇ ਕੋਈ बिंदु है, L उत्ते कोई बिंदु है, BP अते BQ बिंदु B तो BP अते BQ बिंदु B तो एंगल A दियां बाहां ते लंब हन, एंगल A दियां बाहां ते लंब हन, एंगल ए दियां बाहां ते लंब हन। सिद्ध करो की सिद्ध करने लिए क्या गया है। पहली गल, ट्रायंगल APB ते ट्रायंगल AQB APB ਅਤੇ AQB ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BP बराबर है BQ, BP बराबर है BQ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। इस तरह की फिगर है, ये है A, ये रेखा है L, दिस इज B, P, Q, ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। क्या है, रेखा L केड़ी है, ए रेखा जो है L एंगल A नु समदुभाजित करती है। एंगल A मींस A वाला एंगल, पूरा एंगल है A। जे ए रेखा एंगल A नु समदुभाजित करना मतलब दो बराबर हिस्सों च वंडना। तो मैं एंगल A नु इस नु मैं लिख सकदा एंगल 1 निचले नु ते ऊपरले नु मैं लिख देना एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो मतलब एंगल 1 ते एंगल 2 आपस की है बराबर है क्योंकि ए रेखा एंगल ए नु बराबर हिस्सों च वंड गई। सिंपल भाषा च आपां गल करिए तां अते B कोमा L। देखो बच्चे कंफ्यूज होंगे हैं, स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ना है। जदों ने कहता रेखा L तो बाद कोमा पाया मतलब रेखा L तो उस बाद रुक गया, एंगल ए नु समदुभाजित करती है, ये पूरी लाइन है मतलब रेखा L एंगल ए नु बराबर हिस्से च वंडदी है अते B तो बाद फिर कोमा मतलब रुक गया, स्टॉप लगाता। L उत्ते कोई बिंदु है मतलब B जो है L रेखा दे उत्ते कोई बिंदु है। आ L रेखा सी, इस रेखा ते एक बिंदु आ गया B, एक बिंदु आ गया B। BP अते BQ बिंदु, BP अते BQ बिंदु B तो एंगल A दियां PP ਅਤੇ BQ
BP ਅਤੇ BQ ਬਿੰਦੂ B ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ BP ਅਤੇ B ਤੋਂ B ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ एंगल A ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੰਬ ਹਨ मतलब एंगल A देखो आ एंगल A ਕਿਹੜਾ एंगल है आ वाला एंगल A ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और दूसरी बाह आ जा रही है मतलब B ਤੋਂ ਦੋ ਲੰਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤੇ A ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ एंगल A ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ एंगल A ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਉਹ ਸੀ और ਇੱਕ ਬਾਹ A ਸੀ ਤਾਂ B ਤੋਂ ਦੋ ਲੰਬ ਗਿਰੇ ਇੱਕ ਹੈ BP ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ BQ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ B ਤੋਂ ਦੋ ਲੰਬ ਬਣਾਤੇ ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ और ਇਹ ਵੀ 90 डिग्री है सिद्ध करो ट्रायंगल APB ते AQB ट्रायंगल APB आ ट्रायंगल इनमें ट्रायंगल को वन लिख देना समझाने लई और AQB ये है ट्रायंगल नंबर 2 सिद्ध की करना है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस दे विच की ने कोंग्रुएंट है कोंग्रुएंट सिद्ध करनी है उस तो बाद उन्हें की किया ये भी सिद्ध करो कि BP बराबर है BQ BP बराबर है BQ वो तो बड़ा सिंपल है कि जे दो ट्रायंगल्स ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ BP है ਤੇ ਉਸ ट्रायंगल ਦਾ ਇੱਕ ਪਾर्ट BQ है ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ CPCT ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ट्रायंगल APB एक ट्रायंगल पहली मैंने ली APB ਤੇ ਦੂਜੀ मैंने ली AQB ਅਤੇ ट्रायंगल AQB ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 1 ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 2 ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ L ਰੇਖਾ L एंगल A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੇਖਾ L एंगल A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ करती है ये मैं इसका रीजन देता कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 अगली चीज सेकंड थिंग इस ट्रायंगल दे विच आ 90 डिग्री दा एंगल है एंगल BPA और उस ट्रायंगल दे विच BQA 90 डिग्री दा एंगल है तो मैं लिख सकता एंगल BPA बराबर है BQA रीजन की है दोहे 90 डिग्री 90 डिग्री ईच इन्हां दा यही रीजन है कि दोवें 90 डिग्री है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬ ਨੇ ਐਂਡ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੋਲ APB ਕੋਲ ਵੀ AB है और AQB ਕੋਲ ਵੀ AB है तो दोनों ਕੋਲ ਕੀ है AB रेखा तो मैं लिख सकता AB उस दे कोल भी है और AB उस दे कोल भी है ये है सांझी भुजा तो दोनों ट्रायंगल्स आप चेक करिए पहला असी एक एंगल बराबर प्रूव किया फिर असी दोबारा तो एक एंगल बराबर प्रूव किया एंड देन असी एक साइड दोनों दी बराबर प्रूव की तो दोनों ट्रायंगल्स आपस की हो गई तो आप लिखांगे ट्रायंगल APB की होगी कोंग्रुएंट होगी किससे ट्रायंगल AQB दे और रूल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ AAS ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ एंगल एंड साइड नियम ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ सिद्ध करता और ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड पार्ट ਉਹਨੇ क्या सी कि BP बराबर है BQ BP बराबर है BQ जे BP ਨੂੰ BQ ਦੇ ਬਰਾਬਰ सिद्ध करना है ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ है क्योंकि BP इस ट्रायंगल ਦਾ पार्ट है और BQ इस ट्रायंगल ਦਾ पार्ट है तो BP ਨੂੰ मैं बराबर लिख सकता BQ ਦੇ बाय CPCT क्यों लिखिया CPCT क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स पहला ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ कर चुके हैं तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੈਸਪੋंडिंग पार्ट्स है वो आपस ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
बराबर हो जाएंगे क्योंकि आ दोनों ट्रायंगल्स की सीधे कोऑर्डिनेट है। इसका पार्ट बीपी है, उसका पार्ट बीक्यू है। बीपी ते बीक्यू आपस की हो गए बराबर हो गए बस। इस तो नेक्स्ट जेड़ा क्वेश्चन है उस दे विच सानू स्टेटमेंट दी हुई है। सेकंड जो क्वेश्चन है अज दा स्टेटमेंट दी हुई है बट सानू फिगर नहीं दी हुई। ते ऐसे क्वेश्चन ਅਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ध्यान नाल फिगर बनानी है और उस दे अकॉर्डिंग काम करना है। बच्चे थोड़ा जिहा इस क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज होते हैं बट अदरवाइज जे स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ी जाए तो यह बहुत ईजी क्वेश्चन दे विचों एक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो एक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट पहला ਆਪਾਂ लिख लेने हैं। स्टेटमेंट की है सम दो भुजी त्रिभुज ABC विच सम दो भुजी त्रिभुज ABC विच AB बराबर है AC, AB बराबर है AC। एक तो ए दिता हुआ है एंगल B है ते एंगल C, एंगल B अते एंगल C, एंगल B अते एंगल C दो समदुभाजक एक दूसरे नु दे समदुभाजक एक दूसरे नु ओ ते कटदे हन, ओ ते कटदे हन। अच्छा उस तो बाद उन्हें की लिखा हुआ है ए अते ओ नु मिलाओ, ए अते ओ नु मिलाओ, ए अते ओ नु मिलाओ और सिद्ध करो। की सिद्ध करो? सिद्ध करो। सिद्ध ਅਸੀਂ करना है पहली चीज OB बराबर है OC, OB बराबर है OC, ये पहली चीज सिद्ध करनी है। और दूसरी चीज जो सिद्ध करनी है वो है AO एंगल A नु समदुभाजित करना है। ये असी दूसरी चीज सिद्ध करनी है। सो इसको असी किवें करांगे? पहली गल असी स्टेटमेंट तो फिगर ड्रॉ करांगे। देखो सम दो भुजी त्रिभुज ABC, स्टेटमेंट की कह रही है सम दो भुजी त्रिभुज। इट मींस एक ट्रायंगल है वो है जिसका नाम है ABC, जिस दियां दो साइडां बराबर ने। सम दो भुजी का मतलब इस दियां दो साइडां बराबर ने। AB बराबर है AC, वो दित्तियां हुई है किहड़ियां AB ते AC आपां नूं आपस में बराबर दित्तियां हुई ने। एंगल B अते एंगल C दे समदुभाजक। देखो एंगल B दा समदुभाजक आ एंगल B है, आ वाला एंगल B, इसका समदुभाजक A है अते एंगल C दा समदुभाजक ये एंगल C है। इस समदुभाजक मतलब बराबर हिस्सों च वंडण वाला, दो बराबर हिस्सों च वंडण वाली जिहड़ी लाइन है ये कहते दोनों जिहड़े समदुभाजक ने एंगल B दा समदुभाजक अते एंगल C दा समदुभाजक एक दूसरे नु O ते कटदे हन। देखो किथे मैच किथे O ते मैच करदे, O पॉइंट। इस पॉइंट को मैं O लिखता जिथे ये मैच किथे इस नु मैं O लिखता इस पॉइंट। उस बाद उन्हें की है A अते O नु मिलाओ, A अते O नु मिलाओ, A अते O नु मिलाओ। ਅਸੀਂ फिगर ड्रॉ कर ली। उस तो बाद सिद्ध करो कि OB बराबर है OC। OB नु हुण पहली चीज OC दे बराबर सिद्ध करना है। ए रेखा नु इस रेखा दे बराबर। फिर की सिद्ध करना है कि जेडी AO है AO एंगल A नु ए वाले एंगल नु दो समदुभाजित कर दिया। मींस आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल ਅਸੀਂ बराबर प्रूव करना है। मतलब दो बराबर इस आ रेखा एंगल A नु दो बराबर हिस्सों च वंडदी है या समदुभाजित करती है। तो आप लिखते हैं पहली चीज फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन
सानू की दिता हुआ है, पहली चीज दी हुई है AB बराबर है AC। देखो AB बराबर है AC, ये चीज सानू पहला तो दिती हुई है। जेकर AB ते AC आपस में बराबर ने ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ AB ਤੇ AC ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਐਂਗਲ C ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਂਗਲ B। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ AB ਤੇ AC ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, समान भुजावां दे सन्मुख कोण आपस च बराबर हुंदे हन। तां AB ते AC बराबर सी, तां AB दा ओपोजिट एंगल ते AC दा ओपोजिट एंगल आपस च की हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तां AB दा ओपोजिट एंगल की है, एंगल C। अब मैं इसमें लिखूंगा एंगल C बराबर है एंगल B। जेकर एंगल C ते एंगल B बराबर हो गए, क्योंकि समान भुजावां दे सन्मुख कोण ने, तो C दा अर्ध भी B दे अर्ध दे बराबर हो जाएगा। हाफ ऑफ एंगल C किस दे बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल B। जेकर C B दे बराबर है तो C दा अर्ध भी जो है B दे अर्ध दे बराबर हो जाएगा। तो C दा अर्ध देखो, C दा अर्ध केड़ा, एक C कोले आ एंगल है, C दा अर्ध एक तां अंदर वाला एक बाहर वाला है। एवें B दा अर्ध अंदर वाला है ते एक बाहर वाला है। तां अंदर वाला अर्ध केड़ा C दा, एंगल B अपन लिख सकते हैं OCB। अंदर वाला अर्ध C दा OCB, तो मैं लिख सकता एंगल OCB। ते B दा अंदर वाला अर्ध की है, एंगल OBC। ये दोनों आपस में की हो जाएंगे, बराबर। C दा अंदर वाला अर्ध ते बाहर वाला अर्ध भी बराबर ने, B दा अंदर वाला अर्ध ते बाहर वाला अर्ध भी बराबर है। C ते B आपस में बराबर है, इट मींस C दा अंदर वाला अर्ध ते B दा अंदर वाला अर्ध भी आपस में बराबर हो गए। इट मींस आ वाला एंगल OCB ते OBC आपस में बराबर हो गए। जदों ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, आ एंगल इहदे बराबर है, तो इस एंगल दी ऑपोजिट साइड ते इस एंगल दी ऑपोजिट साइड आपस में की हो जाएंगी, बराबर। रीजन की है, देखो जदों समान भुजावां सी तां उन्हां दे सन्मुख कोण बराबर सी। हुण समान कोण है तां उन्हां दे सन्मुख भुजावां बराबर हो जाएंगे। जदों समान भुजावां होण तां कोण बराबर हुंदे ने, जदों समान कोण होण, हुण आ वाला कोण इस दे बराबर है तां इन्हां दी सन्मुख भुजावां, मतलब इस एंगल दी सन्मुख भुजा OB और इस एंगल दी सन्मुख भुजा OC, ये आपस में की हो जाती है, बराबर हो जाएंगे। जे एंगल OCB ते OBC बराबर है तो OCB दे ऑपोजिट की है OB ते OBC इस एंगल दे ऑपोजिट केड़ी रेखा है OC, ये आपस में की हो जाएंगी, बराबर। OB बराबर है OC, OB बराबर है OC। और रीजन ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਂਗੇ कि ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਸੀ OB बराबर है OC, OC AC, ये बराबर, ये सिद्ध करना सी कि OB बराबर है OC। तो ਅਸੀਂ यह सिद्ध करता। ਹੁਣ सेकंड चीज सिद्ध की करना है कि AO एंगल A AO एंगल A ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ तो आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल आपस में हो जाएंगे, कोंग्रुएंट सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं की करदा ट्रायंगल AOB ते ट्रायंगल AOC विच हुण आपां लिखदे हां ट्रायंगल AOB, अपना सेकंड पार्ट शुरू हो गया, अते ट्रायंगल AOC विच ये दोनों दे विच जे आपां देखिए AOB ते AOC च AOB ट्रायंगल दे विच एक AB आंदा है
ਤੇ AOC ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB बराबर है AC। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, डिफाइंड है। AB बराबर है AC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, OB बराबर है OC। देखो OB इस ट्रायंगल ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ OB और इस ट्रायंगल ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ OC। ਤਾਂ OB बराबर है OC। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। और तीसरी चीज जो है इस ट्रायंगल कोल भी AO है, AOB ट्रायंगल कोल भी AO है ते AOC ट्रायंगल कोल भी AO है। तो AO बराबर है AO, एक ही है सांझी भुजा, सांझी भुजा। तो तीन भुजावां देखो साइड साइड एंड साइड, ये तीनों असी की करती हैं अब दो ट्रायंगल्स दियां असी बराबर सिद्ध करती हैं। जो साइड साइड एंड साइड असी बराबर सिद्ध करती हैं तो मैं उस तो बाद लिख सकता कि जी ट्रायंगल AOB ते AOC है तो ट्रायंगल AOB एक ही है कॉन्ग्रुएंट है किससे ट्रायंगल AOC दे। और नियम असी लगाया SSS नियम राय, SSS नियम राही असी सिद्ध करता कि आ वाली ट्रायंगल जो है वो इससे कॉन्ग्रुएंट है। ते जे दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल च आ वाला एंगल है और इस ट्रायंगल च आ वाला एंगल है। इसनु मैं एंगल लिखदा AOB, तो एंगल AOB बराबर होगा, इसनु मैं लिखदा सॉरी OAB, इसनु मैं लिखदा एंगल OAB बराबर होगा एंगल OAC दे। आ वाला एंगल इस दे बराबर होगा जिते जेकर आह दो एंगल्स आपस से बराबर से सिद्ध करते इट मींस ਅਸੀਂ लिख सकते हैं कि AO जो है एंगल A ਨੂੰ समदुभाजित करती है। तो AO जो है ਅਸੀਂ नीचे लाइन लिख देंगे कि AO जो है एंगल A ਨੂੰ दो बराबर हिस्सों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ क्वेश्चन ਹੋਏਗਾ ट्रायंगल ABC विच AD भुजा BC ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹੈ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ट्रायंगल ABC विच AD भुजा BC ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹੈ। AD ਭੁजा BC ਦਾ ਲੰਬ समदुभाजक है। सिद्ध करो ट्रायंगल ABC सिद्ध करो ट्रायंगल ABC समदोभुजी त्रिभुज है, समदोभुजी त्रिभुज है जिस विच AB बराबर है, जिस विच AB बराबर है AC। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ट्रायंगल ABC ਵਿੱਚ AD ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ट्रायंगल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ABC ਵਿੱਚ AD ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ AD ਹੈ ਭੁਜਾ BC ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਹੈ। मींस एक तो ये 90 डिग्री दे एंगल है, जी आ लाइन आ रही है जो BC ਨੂੰ बराबर हिस्सों च वंडदी है। इट मींस BD जो है BC के बराबर है ते आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल आपस की ने बराबर है। देखो लंब समदुभाजक का मतलब इस दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है लंब, इट मींस जी आ रेखा आ रही है ये इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समदुभाजक मतलब BC ਨੂੰ बराबर हिस्सों च वंडदी है AD। इट मींस BC ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ D ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਖਾ ਹੋਈ BD ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਹੋਈ DC, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
BD ਤੇ CD ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ AB ਜੋ ਹੈ ਉਹ AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACD ਵਿੱਚ, ABD ਅਤੇ ACD ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, BD ਬਰਾਬਰ ਹੈ CD, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ BD ਬਰਾਬਰ ਹੈ CD। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਰੇਖਾ BC ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ BD ਬਰਾਬਰ ਹੈ CD। ਐਵੇਂ ਐਂਗਲ ADB ਤੇ ਐਂਗਲ ADC, ਐਂਗਲ ADB ਤੇ ADC, ਐਂਗਲ ADB ਤੇ ADC, ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਹਰੇਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ AD ਇਜ਼ ਲੰਬ ਹੈ BC ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ और दूसरी ट्रायंगल ए वाली है, इसका एक पार्ट BD है, उसका एक पार्ट CD है, आपस बराबर है। इसका एक आ एंगल है, इसका एक आ एंगल है, ये आपस बराबर है। और तीसरी चीज होर इन्हां दोनों विच की कॉमन है, AD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और AD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। देखो ABD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ AD ਆਉਂਦਾ ਹੈ और ACD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ AD ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ AD बराबर है AD। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ, ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ट्रायंगल ABD ਤੇ ट्रायंगल ACD, ਇਹ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। रूल ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ, SAS ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਦੋਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ SAS ਰੂਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ SAS ਨਿਯਮ ਲਗਾਤਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਂਗਰੂਐਂਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AC। ਤਾਂ AB ਦੇਖੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ AB ਤੇ AC ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ AB बराबर है AC। AB इस ट्रायंगल का पार्ट है, AC इस ट्रायंगल का पार्ट है, ते दोनों आपस AB ते AC बराबर हो जाएंगे बाय CPCT, या फिर आप लिख सकते हैं CPCT राही पंजाबी च। तो AB बराबर है AC, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ, AB बराबर है AC। उसने ਕੀ किया सी कि सिद्ध करो ट्रायंगल ABC सम दो भुजी त्रिभुज है, मतलब जिस च दो भुजावां बराबर है। हुण इस ट्रायंगल च जे AB ते AC दो आपस में बराबर हो गया साइड्स, तो इट मींस ये जो ट्रायंगल बन गई, दो बराबर साइडां वाली ट्रायंगल बन गई, उसको ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, सम दो भुजी त्रिभुज। तो ਅਸੀਂ ਇਹ प्रूव करता और उसको ਅਸੀਂ कहता कि ये जो ट्रायंगल है सम दो भुजी त्रिभुज है।